السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات سے 23 اگست کا وعدہ کیا گیا تھا کہ 23 اگست کو پہلا سبق شروع کیا جائے گا نورانی قاعدے کا، تو بغیر تاخیر کرتے ہوئے میں آپ حضرات کو پہلا سبق میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کچھ تمہیدی بات، کچھ ضروری باتیں ائمہ حضرات کو بتلا دی جائیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو یہ کرنا ہے کہ آپ ایک دیوار پر یا تو بلیک بورڈ لگائیں یا پھر اگر آپ کے پاس میں ایسا پرچہ ہے تو اس کو لگائیں۔ یہ تختی نمبر 1 مفردات جو ہیں، اگر یہ ایسا پرچہ ہے حروف تہجیوں کا تو اس کو آپ دیوار پر لگائیں یا پھر بلیک بورڈ کا استعمال کریں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو پہلے شروعات میں، پھر بعد میں ہمیں یہ کام کرنا ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ سامنے بچوں کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو سامنے بٹھائیں اور ان کو یہ بات سمجھائیں۔ سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے آپ حضرات کو، آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی اہمیت اور قرآن کریم کا مقام یہ بچوں کے ذہن میں بٹھائیں تاکہ بچوں کے دلوں میں اس بات کی عظمت ہو جائے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، ہاں، جو پوری کائنات کے مالک ہیں۔ اپنے اعتبار سے آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، اپنے اعتبار سے آپ بچوں کو کیا ہے سمجھائیں۔ مجھے تو بس آپ کو یہاں جو اصل جو مقصد ہے، جو بچوں کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بورڈ کے اندر یہاں انہوں نے ایک قرآن کی آیت بتلائی ہے اور ایک احادیث، تو ان دونوں کے اندر قرآن کریم کی اہمیت کو بتلایا ہے، قرآن کریم کو کس طریقے سے پڑھا جائے اس کو بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پڑھنے والوں کی بھی فضیلت کو بتایا ہے کہ پڑھنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ آپ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا میں تمہارا استاد ہوں، تم میرے شاگرد ہو، میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اور تم مجھ سے پڑھ رہے ہو، میں تمہارا استاد، تم میرے شاگرد، اور ہم اس حدیث کے مطابق کیا ہے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے، تم قرآن سیکھ رہے ہو اور جو سکھائے، میں تمہیں قرآن سکھا رہا ہوں۔ اس طریقے سے بچوں کو سمجھائے اور اپنے اعتبار سے بچوں کو سمجھاتے رہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کے حروف کو صاف پڑھیے، اچھے لہجے سے پڑھیے، بہترین انداز سے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ صاف اور ستھرا پڑھیے۔ تو اس لیے یہ دو باتیں سب سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے بچوں کو سمجھانی چاہیے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو قرآن کریم کے ذریعے سے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے اس کا دل منور ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں، اور قرآن کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر کیا ہے اس کو نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکی ملتی ہیں۔ اس طریقے کا آپ حضرات آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان کا ذہن بنائیں تاکہ وہ اس چیز کا کیا ہے شوق کریں اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، بہترین انداز میں پڑھیں۔ تو چلیے میں آپ حضرات کو اب شروع سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے بلیک بورڈ پر بچوں کو کس طریقے سے سمجھانا ہے۔ سب سے پہلے بلیک بورڈ دیوار پر لگائیں، بچوں کو سامنے بٹھائیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک قلم ہونا چاہیے، جو ایک دوسرا اس طریقے کا جو قلم ہوتا ہے، یا ایسا قلم ہو یا ایک اور دوسرا قلم ہوتا ہے، یا پھر چوک وغیرہ ہو۔ چوک سے پڑھانے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ہم موٹا بھی لکھ سکتے ہیں، پتلا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے، بچوں کے سامنے ایک لمبی سی لائن کھینچنی ہے، بلیک بورڈ پہ ایک لمبی سی لائن کھینچنی ہے۔ اب بچوں سے پوچھو، سوال کرو کہ بیٹا یہ کیا ہے، کوئی لین بتائے گا، کوئی لکیر بتائے گا، کوئی لکیر بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا، لیکن تمہیں بچوں کو صحیح بتانا ہے کہ بیٹا اس کو بولتے ہیں اردو میں لائن،
ये क्या है, लाइन है। फिर उनको बताया कि हम इस लाइन को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ इसको बड़ा लिखा तो हमारे इख्तियार में है कि ये छोटी लाइन है, ये इससे बड़ी लाइन है, और ये इससे बड़ी लाइन है, इससे छोटी भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे इख्तियार में है। ये सब क्या है, लाइन है। इन सब को बच्चों से पूछे भाई ये कैसी लाइन है, बच्चे कहेंगे बड़ी लाइन। ये कैसी लाइन है, इससे छोटी लाइन। ये कहेंगे इससे बड़ी लाइन, ये सबसे छोटी लाइन। इस तरीके से हम क्या करें, बच्चों से पूछते रहें। अब उसके बाद में आप हजरात को क्या काम करना है, सबसे पहले आप बच्चों को क्या है, नुक्तों की पहचान कराएं। नुक्तों की पहचान ये बहुत अहम और जरूरी है। तो बच्चों को बताएं कि सबसे पहले बच्चों को बताएं कि भाई नुक्ते कितने होते हैं, नुक्तों की जो तादाद है वो कितने हैं। नुक्तों की तादाद है वो 3 है। 3 से ज्यादा नुक्ते नहीं होते, 4 नहीं होते, 5 नहीं होते, 6 नहीं होते। नुक्ता 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होते हैं। हाँ, तो इसलिए तो हमें सबसे पहले बच्चों को क्या है, नुक्तों की पहचान करानी है। तो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे ये। फिर हम बच्चों से पूछेंगे भाई कितने नुक्ते हैं, तो बच्चे फौरन जवाब दे देंगे ये 1 नुक्ता है। और फिर हम बच्चों से पूछेंगे ये कहाँ है, इसकी जगह भी पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे कि ये क्या है, ऊपर है। कितने हैं, 1, कहाँ है, ऊपर। इस तरीके से हमें लिखना है। ये 2 नुक्ते हो गए, ये 2 नुक्ते ऊपर लिख दिया हमें। फिर बच्चों से पूछेंगे भाई कितने नुक्ते हैं, 2 नुक्ते कहाँ है, ऊपर है। फिर उसके बाद में हमें लिखना है यहां 3 नुक्ते। तो ये बढ़ते चले गए, 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते। तो तीनों कहाँ हैं, बच्चों से सवाल करो, बच्चे बताएंगे। कुछ बच्चे बताएंगे ऊपर, कुछ बताएंगे नीचे, कोई बताएगा 3। तो जब सब बच्चों की आवाज आपको एक जैसे आने लगे तो सबसे पहले उनको क्या है, नुक्तों की पहचान करा। फिर उसके बाद में यहां लिखें इस तरीके से। अब उनसे पूछे बच्चों से कि देखो बेटा मैंने तुम्हें बताया नुक्तों की जो तादाद है वो 3 है, 1, 2, 3, ठीक। उसके बाद में बताया बेटा 1 नुक्ता कभी ऊपर आता है और कभी नीचे आता है, 2 नुक्ते कभी ऊपर आते हैं और कभी नीचे आते हैं, और 3 नुक्ते हमेशा कहाँ आते हैं, ऊपर। फिर उनको मिसाल लिखें, मिसाल लिखें। ये जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये लिखा यहां। अब इसको बताएंगे बच्चे बा, क्या बताएंगे, बा बताएंगे। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको और जैसे समझने में आसानी हो जाए। ये हमने लिखा। अब बहुत सारे हम पूछेंगे भाई ये क्या है, बहुत सारे बताएंगे बा, बहुत बताएंगे बा जबर बा। हालांकि हमने इस पे न नुक्ता लगाया, ना जबर लगाया, ना पेश लगाया, कुछ नहीं लगाया। ये खाली अभी क्या है, शक्ल है। क्या है भैया, अभी क्या है, ये शक्ल है। और अब हम इसके नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा बा, और हम इसके नीचे नुक्ता लगा देंगे ऊपर 2 तो बन जाएगा ता। हम इसके ऊपर 1 नुक्ता और बढ़ा देंगे तो बन जाएगा सा। तो इसलिए नुक्तों से ही लफ्ज बनता है। नुक्ता मिटा देंगे तो शक्ल, और नुक्ता लगा देंगे तो ऊपर क्या है, ता सा बन जाएगा। तो 3 नुक्ते आते हैं, 3 से 4 नुक्ते कभी भी आपको नजर नहीं आएंगे। बच्चों को इस तरह समझाओ, बताओ कि 4 नुक्ते एक साथ है ही ना, 3 ही नुक्ते हैं। या तो 1 नुक्ता ऊपर आएगा या नीचे आएगा। फिर उसके बाद में 2 नुक्ते ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे, 3 नुक्ते हमेशा ऊपर आएंगे। जगह भी बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। अलबत्ता इनको तो बता दो कि ये 3 नुक्ते हमेशा ऊपर ही आएंगे। फिर उसके बाद में बताओ ये 1 नुक्ता ऊपर आता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, 2 नुक्ते। इस तरीके से हमें बच्चों को क्या करना है, समझाना है। उसके बाद हमें बच्चों को एक मोटी सी बात और इसमें बतानी है। बच्चों से सवाल करो कि बेटा बताओ ऐसे कितने हुरूफ हैं, ऐसे इनमें कितने हुरूफ हैं जिनके नीचे 1 नुक्ता आता है, जिनके नीचे 1 नुक्ता आता है। तो हमें यहां देखना है। तो भाई हम देखेंगे, बच्चे तलाश करेंगे। अगर ऐसा आपके पास में है बोर्ड तो बच्चे देखेंगे, कोई बताएगा 3, कोई बताएगा 1, कोई बताएगा 2, अलग अलग तरीके से बच्चे बताएंगे।
फिर उनसे कहो, दोबारा देखो ध्यान से, तवज्जो से, बार बार उनसे कहो। और मेरी आप तमाम हजरात से दरखास्त है, तमाम अइम्मा हजरात से, हम सब से ये बहुत बड़ी कमी और गलती होती है कि हम बच्चों को एक दो मरतबा पढ़ाकर छोड़ देते हैं। हम समझते हैं बच्चों को समझ में आ गया, हालांकि ऐसा नहीं होता। बच्चों को जब तक पढ़ाओ, जब तक तुम्हें खुद एतमाद ना हो जाए कि बच्चा समझ गया और उसको याद हो गया, बार बार उसको पढ़ाओ, बार बार उसको पढ़ाओ, तब जाकर सबक याद होगा। तो इसलिए ये जड़ है, जितनी जड़ मजबूत होगी तो इंशाअल्लाह ये बच्चे आपके पास में बहुत जल्दी कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे और इनको पहचान हो जाएगी। तो हमें फिर बच्चों से ऐसा पूछना है, भाई इतने हुरूफ, ऐसे हुरूफ कितने हैं जिनके एक नीचे नुक्ता है। फिर पूछना है, ऐसे कितने हुरूफ हैं अलिफ बा में से कि जिनके ऊपर एक नुक्ता है। फिर पूछना है कि ऐसे कितने हुरूफ हैं कि जिनके नीचे दो नुक्ते हैं। फिर पूछना है कि ऐसे कितने हुरूफ हैं बेटा कि जिनके ऊपर दो नुक्ते हैं। फिर पूछना है आखिर में कि भाई ऐसे बताओ, ऐसे हुरूफ कितने हैं जिनके ऊपर तीन नुक्ते आते हैं। ये पूछने के बाद फिर सबसे आखिर में पूछना है, अच्छा ऐसा बताओ कि सबसे कितने हुरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर एक भी नुक्ता नहीं है। अरे भाई ऐसे हुरूफ भी तो हैं जिनके ऊपर एक भी नुक्ता है, जैसे ये है, इसके ऊपर एक नुक्ता ना है, ये है, इसके ऊपर एक नुक्ता नहीं है, ये स्वाद है, फा है, आइन है, लाम है, मीम है, वाव है। तो ऐसे बहुत सारे हुरूफ होते हैं। तो सबसे पहले ये पहला सबक है आप हजरात का, आप अपने बच्चों को इस अंदाज में पढ़ाओ। इंशाअल्लाह आपने पढ़ा दिया बेहतरीन अंदाज में, इखलास के साथ में, तो आप दुआ दोगे, आप याद करोगे। तो इसलिए ये तरीका है मेरा, जो अपना तरीका है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, वो बच्चे फौरन उसको क्या कर देते हैं, बतला देते हैं। अभी मैं आपके सामने एक बच्चे से पूछता हूं, सवाल करता हूं, मैं पूछता हूं, अभी इसको मिटा देता हूं। आज बेटे इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी साइड दें, यहां खड़े हो जाओ इधर। अच्छा मैं पूछूंगा अभी तुमसे, ये कितने नुक्ते हैं, कितने हैं, कितने हैं, एक। इसको पकड़ो, कहाँ है, ऊपर। ये कितने, दो। दो, कहाँ है, ऊपर। ये कितने, दो। तीन। कितने है, तीन। कहाँ है, ऊपर। ऊपर, ये कितने नुक्ते हैं, एक। कहाँ है, नीचे। ये कितने, दो। कहाँ है, नीचे। अच्छा मैं अभी लिख रहा हूं आपके सामने, ये क्या है, शकल। क्या है, शकल। शक्ल, क्या है, शकल। शक्ल है। अच्छा अब ये शक्ल है, इसको हम बा पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं बा, इसको बा कब पढ़ेंगे, जब हम इसके नीचे नुक्ता दे देंगे। अभी क्या है, शकल, इसलिए इसको बा नहीं पढ़ सकते, समझ में आ रही बात। तो अब हम इसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया, तो अब क्या बन गई है, बा। बा। हम इसको मिटा देंगे, इसके ऊपर दो नुक्ता लगा देंगे, क्या बन जाएगी, ता। और हम इसके ऊपर एक नुक्ता और लगा देंगे, ज्यादा कर देंगे, तब क्या बन जाएगी, सा। सा। चलिए, तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को जब बताओगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो इसलिए बार बार पहले शुरू में, चाहे इसमें आपको इस सबक के अंदर एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, जब तक आपका दिल ये नहीं कहता कि मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई, तब तक आप उनको क्या है, छोड़े ना। तो सबसे पहले क्या है भाई, ये सबक पढ़ाएं, कुरान की अहमियत बताएं, हुरूफ की क्या है पढ़ने के बारे में बताएं, कुरान को किस तरह पढ़ा जाता है। आपके यकीन करो आपको इसको 8-7 महीने लगेंगे सही पढ़ाने में नूरानी। इंशाअल्लाह वही बच्चे 4-5 महीने में कुरान ले लेंगे, और बेहतरीन लहजे से, वो लहजा का जो सिस्टम है वो भी मैं आगे चल के आप हजरात को बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, नुक्तों की पहचान बच्चों को क्या है करानी है, अलिफ से लेकर। फिर ये भी कराना है कितने हुरूफ ऐसे हैं जिनके एक नुक्ता है, 2 नुक्ते हैं, ऊपर नीचे, जो मैंने बता चुका हूं पहले ये सब। फिर इनको ये बताना है कि भाई अलिफ से लेके या तक को क्या बोलेंगे, अलिफ से लेके या तक को क्या बोलेंगे, हुरूफ है तहज्जी। ये तमाम के तमाम बताने, फिर हुरूफ गिनवाना कितने हुरूफ हैं, तो ये एक काम है। तो इसलिए आप अपने इन